So, good evening. So last day we completed your fifth chapter, which is titled "The 100 Dresses One," written by L. Bor Esther. Sorry, and we finished this chapter ended on the note that there were three girls mostly, Peggy, Maddie, and Wanda. And Peggy used to make fun of Wanda for she being an outsider, she being someone who is not an American. She is a Polish immigrant, that is a person who migrated from Poland because of certain issues in her homeland and came here. And since she has a different name, since she stayed in a poor locality, a faraway locality, and over that she used to say lies in order to save herself from many embarrassing situations. So she was always made fun of by Peggy and other friends, and mostly Peggy and Maddie. Now we know that Maddie is not essentially a very bad girl, because she used to think that if she doesn't support Peggy in her this game of 100 dresses, which she has invented in order to harass and tease Wanda, then she would be the next target, because she herself is a poor girl and mostly used to wear second-hand dresses, which her mother stitches and makes them for her. And she was afraid that she might be the next target of Peggy and other people who would harass her or tease her. Okay, and over this she doesn't want to lose her friendship with Peggy. But they were surprised when they found that the competition that was happening in their class about the drawing between boys and girls, in which in the girls category about 100 such dress portraits, paintings of the dress, beautifully designed and vibrant and colorful, were submitted by Wanda, and she won the contest. And they were astonished on knowing that Wanda is such a talented girl, right? So we studied that till that point in the earlier chapter. And as I said earlier, that you have also a second part to this chapter, as the chapter is a pretty big one. So this was divided into two parts, that is 100 Dresses 1 and 100 Dresses 2. And 100 Dresses 2 is the sixth chapter. So today we'll begin with the 100 Dresses 2. So अभी तक मैंने थोड़ा एक बैकग्राउंड दे दिया कि हम लोगों ने कहाँ पे ख़त्म किया था कि क्लास में तुम्हारा वो चल रहा है, तुम्हारा मतलब डिक्लेयर किया मिस मेसन ने कि वांडा जीत गई है, और मिसेस मेसन ने सबको बोला कि फर्स्ट पीरियड तुम लोग जाके थोड़ा देख लो चारों तरफ, मतलब एग्जीबिशन हो रहा था रूम में, तुम लोग देख लो कौन क्या कर रहा है। और वही होते ही क्लास के सारे लोग, मतलब जैसे कि क्लास में होता है ना, जब भी तुम लोग को वो करते हैं, कभी क्लास फ्री देते तो चिल्लाना एकदम वो करना, तो स्टूडेंट से शुरू कर दिया था। और वांडा का जो पेंटिंग्स वो देख के पेगी और मेडी जो है बहुत सरप्राइज थे, राइट? वहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द 100 Dresses 2. Okay. While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. Miss Mason read it several times and studied it thoughtfully for a while. Then she clapped her hands. "Attention, class, everyone back to their seat." When the shuffling of the feet had stopped and the room was still quiet, Mrs. Mason said, "I have a letter from Wanda's father and I want to read to you." तो क्लास के सभी जो बच्चे लोग थे वो सर्कल मतलब घूम घूम के देख रहे थे क्लास में जो पेंटिंग्स एग्जीबिशन में लगे हुए थे, ठीक है। उसी समय प्रिंसिपल के ऑफिस का जो मॉनिटर मतलब जो पियोन है, जो मैसेंजर है, वो मैसेंजर क्लास में आता है। जैसे कि तुम लोग के क्लास में कभी आता होगा, जो नोटिस वोटिस लेके कोई आता है ना, दिखाने के लिए कि क्या कुछ वो होता है, या फिर मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में ऐसे ही होता है। आई डोंट नो अबाउट योर स्कूल्स की अर्जेंट कोई अगर नोटिस वोटिस देना होता है कुछ चीज़ के बारे में, तो देयर इज दिस मैसेंजर who brings the register in which the notice was written, and the teacher reads the notice to you. So similarly उनके स्कूल में भी एक पियोन था जिसको मॉनिटर कहा गया है प्रिंसिपल ऑफिस का। तो वो आता है, वो एक चिट्ठी लाता है, लाके वो मिसेस मेसन को देता है। मिस मेसन वो चिट्ठी बहुत बार पढ़ती है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ती है, बहुत मतलब पढ़ के वो सोच में पड़ जाती है कि क्या लिखा है इस चिट्ठी में। फिर वो अपने आप को थोड़ा संभालती है, फिर वो ताली मार के मतलब हैंड्स को क्लैप करके, ठीक है, क्लास का अटेंशन ड्रॉ करती है उनकी तरफ, क्लास का अटेंशन उनकी तरफ लाती है और बोलती है कि अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू योर सीट। तो सबको वो अपने जगह पे जाने के लिए बोलती है। When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, और जब मतलब सब सेटल हो गए, शफलिंग मतलब तुम्हारा पैरों का आवाज़ जो था
घिस घिस के जाना, वो सब खत्म हो जाता है, क्लास शांत हो जाता है, ठीक है। तब मिस मेसन बोलती है कि उनके पास वांडा के पापा का एक लेटर आया है, वांडा के फादर का एक लेटर आया है, वो पूरे क्लास को वो पढ़ के सुनाना चाहती है। मिस मेसन stood there a moment and the silence in the room grew tense and expectant. The teacher adjusted her glasses slowly and deliberately. तो उस चिट्ठी में कुछ ऐसा था जो मिस मेसन बहुत ही आसानी से नहीं बोल पा रही थी, ठीक है। तो मिस मेसन जब पूरा क्लास शांत हो गया, सब सेटल हो गया, वो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपने आप को संभाला, एक मोमेंट के लिए वो खड़ी हुई, ठीक है। और वो जैसे ही अपने आप को मतलब संभाल रही थी और अपने आप को चिट्ठी पढ़ने के लिए प्रिपेयर कर रही थी, ठीक है, पूरे क्लास का एनवायरनमेंट और भी टेंस और भी एक्सपेक्टेंट हो रहा था, मतलब और भी उत्सुक हो रहा था कि क्या है लेटर में, कुछ अच्छा है, बुरा है, क्या है वांडा का। अब जाके लोगों को वांडा के बारे में थोड़ा मतलब सोचना हो रहा था कि वांडा को क्या हुआ, कहाँ गए, क्या हुआ उसके साथ, ठीक है। इतने दिन तक उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि उनका कोई वांडा से मतलब वांडा कैसी है, अच्छी है, उसके बारे में कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं था वांडा का उनके पास। वांडा का इम्पोर्टेंस है उनके पास था जब वो मज़ा करना चाहते थे, राइट। लेकिन अब जब वांडा जीत गई है तो वो लोग सोच रहे थे कि क्या हो सकता है लेटर में, वांडा इतने दिन से स्कूल नहीं आ रही है, अब वो ये कंपटीशन जीत गई है तो क्या होगा। तो पूरे क्लास का जो एनवायरनमेंट था वो बहुत ही टेंस था और बहुत एक्सपेक्टेंसी के साथ, बहुत ही एक्सपेक्टेड मतलब वो के साथ वो लोग देख रहे थे कि क्या है। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस, तो मिसेस मेसन ने अपने ग्लास को थोड़ा ऐसा एडजस्ट किया, ठीक है, और शायद डेलिबरेटली किया क्योंकि वो शायद अपने आप को भी मतलब संभाल रही थी। शायद कुछ लेटर में कुछ ऐसा था जो पढ़ के उनको बहुत दुख लगा हो या वो बहुत दुखी हुई हो, ठीक है। Her manner indicated that what was coming. This letter from Wanda's father was a matter of great importance. और वो जैसे टाइम ले रही थी, अपने आप को संभाल रही थी, धीरे धीरे बोल रही थी, उससे समझ में आ रहा था कि जो लेटर में जो कुछ भी है, जो कुछ भी लिखा है वो मामूली बात नहीं है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट कोई बात है उस लेटर में, ठीक है। तो वो लोग वो समझ गए थे, ठीक है। Everybody listened closely as Miss Mason read the brief note. और जब मिसेस मेसन वो लेटर पढ़ रही थी, पूरे क्लास का सारे स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से एकदम शांत से सुन रहे थे, ठीक है। और वो लेटर बहुत ही छोटा था, एकदम ब्रीफ था, ठीक है। तो लेटर में अब क्या था? डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू स्कूल एनी मोर, जेक ऑल्सो, नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, नो मोर हॉलर पोलाक, नो मोर आस्क वाई फनी नेम, प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, योर्स ट्रूली जैन पेट्रोन्स्की। तो उसमें क्या लिखा था? उन्होंने टीचर को एड्रेस करके लिखा था। किसने लिखा था? फादर ने, जिनका नाम है जैन पेट्रोन्स्की, ठीक है। याद रखना, ये सब शॉर्ट नोट के लिए आ सकता है, ठीक है। तो उसका नाम है जैन पेट्रोन्स्की, ठीक है। और उसमें उन्होंने टीचर को एड्रेस करके लिखा था कि मेरी वांडा अब और वो स्कूल में नहीं आएगी। जेक भी नहीं है कि जेक शायद वांडा का भाई रहा होगा, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग को इतना डिटेल्स में नहीं बताया गया है, ठीक है। जब जेक का नाम वहाँ पे मेंशन है मतलब वांडा का कोई रिलेटिव्स है, तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस लेट्स टेक दैट पर्सन इज वांडास लिटिल ब्रदर और लिटिल ब्रदर, मोस्टली लिटिल ब्रदर ही, ठीक है। तो लिटिल हो एल्डर हो बट वांडा का ब्रदर, ठीक है। तो वांडा अब से स्कूल नहीं आएगी, जेक भी नहीं आएगी, ठीक है। हम लोग बड़े शहर में शिफ्ट हो रहे हैं जहाँ पे शायद कोई हमें पॉलेक कह के नहीं मतलब चिढ़ाएगा। पॉलेक एक वर्ड है, एक जो अमेरिकन लोगों ने कॉइन किया था। किस चीज़ के लिए? ये पॉलिश जो माइग्रेंट्स है, पोलैंड से जो लोग अमेरिका में आए थे उन लोगों को चिढ़ाने के लिए, ठीक है। तो एक चिढ़ाने का टर्म है, ठीक है। और हॉलर मतलब ज़ोर से चीख के, ठीक है, चीख के बोलने को हॉलर कहते हैं, ठीक है। तो वो बोल रहे थे कि नो मोर हॉलर पॉलेक, मतलब कोई और मतलब ऐसे चीख के हम लोग को पॉलक बोल के नहीं चिढ़ाएगा। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, कोई हम लोग को आके नहीं बोलेगा कि तुम्हारा नेम कितना फ़नी है, तुम्हारा नाम कितना मतलब फ़नी है, तुम कितने फ़नी हो, ठीक है। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटीज़, और बड़े शहर में शायद ऐसे फ़नी नेम्स बहुत सारे, मतलब मेरे जैसे और भी बहुत लोग होंगे, या फिर बड़े शहर में शायद लोग अपने अपने काम में इतने ज़्यादा व्यस्त होंगे कि उन लोग को ये सब करने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग ये शहर छोड़ के जा रहे हैं, योर्स ट्रूली जैन पेट्रोन्स्की। मतलब वांडा के माता पिता ने समझ लिया था कि वांडा के साथ स्कूल में कुछ बुरा हो रहा है, ठीक है, जिसके चलते उन्होंने वांडा को स्कूल से निकाल दिया और वो लोग भी शहर छोड़ के चले गए, ठीक है।
उसके बाद क्या हुआ? A deep silence met the reading of this letter. Miss Mason took off her glasses, blew on them, and wiped them on her soft white handkerchief. Then she put them on again and looked at the glass. When she spoke, her voice was very low. तो जब वो लेटर पढ़ा गया ना, उसके बाद पूरे क्लास शांत हो गया, पूरा क्लास ऐसे शांत हो गया, ठीक है, क्योंकि शायद किसी ने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने पहले ही बोला था, मतलब पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पैगी है, पैगी सोचती है कि वो वैसे बहुत नरम दिल की लड़की है, वो किसी के मतलब जब छोटे छोटे बच्चे को दूसरे शैतान बच्चे परेशान करते थे तो उनको बचाती थी। लेकिन वो जो वांडा के साथ जो करते थे उसको वो क्रुएलिटी नहीं सोचती थी। क्यों नहीं सोचती थी? क्योंकि वांडा उन लोगों से डिफरेंट थी, वांडा का नेम डिफरेंट था, वांडा का सब कुछ, मतलब वांडा थोड़ी उन लोगों से अलग थी, वही उसका वो था, प्रॉब्लम था, जिसके चलते पैगी उसके साथ जो बदसलूकी करती थी वो उसको क्रुएलिटी नहीं लगता था। तो अब जब ये लेटर लिखा गया तब बाकी के सब लोग समझ गए थे कि वो लोग जो वांडा के साथ कर रहे थे वो बहुत बुरा कर रहे थे। तो उन सब लोगों को शायद थोड़ा बुरा लगा, जिसके चलते पूरा क्लास शांत हो गया, ठीक है। मिसेस मैसन को भी बहुत बुरा लगा कि उनके क्लास के स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे थे, वो एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उनके आंखों में भी शायद आंसू आ गया, ठीक है। पता है ना, जब मतलब आंखों में आंसू आता है या फिर रोना आ जाता है तो क्या होता है, जब चश्मा पहना होता है ना, चश्मा पूरा वो हो जाता है, फॉगी हो जाता है, पूरा धुंधला जाता है, ठीक है। तो शायद उनका भी वही हो गया, ठीक है। तो उन्होंने अपना ग्लास निकाला, ग्लास में थोड़ा मुंह से हवा दिया और उसको पोंछा, ठीक है, और पोंछ के उन्होंने फिर से लगा के उन्होंने क्लास की तरफ देखा। और अब जो उन्होंने क्लास को बोला वो बहुत ही धीमे आवाज़ में, बहुत ही धीरे धीरे उन्होंने क्लास को कुछ बोलने की कोशिश की। क्या बोला? आई एम श्योर दैट none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because of his or her name happened to be a long and unfamiliar one. I prefer to think that what was said in thoughtlessness. I know what all of you feel the way I do, that this is a very unfortunate thing to have happened, unfortunate and sad both, and I want you all to think about it. तो मिसेस मैसन को शायद विश्वास नहीं हुआ कि उनके स्टूडेंट्स कुछ ऐसा कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं श्योर होना चाहती हूँ, ठीक है, मैं ये श्योर होना चाहती हूँ कि मेरे क्लास मतलब रूम 13 क्लास के जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियाँ हैं, उन्होंने जो भी किया होगा वो पर्पसफुली या डेलिबरेटली नहीं किया, मतलब जानबूझकर या मतलब इच्छा करके कुछ नहीं किया होगा, ठीक है। किसी का फीलिंग्स हर्ट नहीं किया होगा सिर्फ इसलिए कि उसका नाम थोड़ा लंबा है, थोड़ा अनफेमिलियर है। ऐसा टीचिंग्स तो शायद मैंने अपने क्लास के स्टूडेंट्स को नहीं दिया है कि वो लोग करेंगे, ठीक है। मैं यही सोचना चाहती हूँ, मतलब वो बोलना चाहती है कि मतलब उनको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके स्टूडेंट ऐसा कर सकते हैं, तो वो बोल रहे थे कि मैं यही सोचना चाहती हूँ कि तुम लोगों ने जो भी किया, तुम लोगों ने बिना सोचे समझे किया, ठीक है। मुझे मालूम है कि मुझे जैसा फील हो रहा है वांडा के जाने का, तुम सब लोगों को भी यही फील हो रहा है, उतना ही दुख हो रहा है, उतना ही सैड हो। और सोचिए कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट थिंग है, ठीक है, कि ऐसा कुछ होगा, अनफॉर्चुनेट एंड सैड बोथ, ठीक है। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है और बहुत ही दुखी बात भी है कि कुछ ऐसे एक रीज़न के लिए एक ऐसी अच्छी लड़की हमारा क्लास छोड़ के चली गई। और अगर किसी ने भी ये जानबूझ के किया है तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी इसके बारे में सोचो कि तुम लोगों ने कितना गलत किया, ठीक है। तो यही बात उन्होंने क्लास को बोला। उसके बाद उन्होंने क्लास को स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आफ्टर ऑल क्लास है, क्लास तो कराना पड़ेगा, राइट, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ? The first period was a study period. Maddie tried to prepare her lessons, but she could not put her mind on her work. She had a very sick feeling in the bottom of her stomach. True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing. She had stood by silently, and that was just as bad as what Peggy had done. Worse, she was a coward. At least Peggy hadn't considered they were being mean, but Maddie had thought that they were doing wrong. She could put herself in Wanda's shoes. तो उन लोगों का जो पहला पीरियड था वो स्टडी पीरियड था, मतलब कुछ पढ़ने के लिए दिया जाता था, उसको पढ़ के आप लोगों को कुछ आंसर पर वो करना पड़ता था, तो ऐसा कुछ स्टडी पीरियड था। मैडी किसी भी तरह, मतलब मैडलिन
जो थी, मैडी किसी भी तरह अपने लेसन्स में कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, ठीक है। वो किसी भी तरह अपना दिल नहीं लगा पा रही थी। शी वॉज फीलिंग सिक, उसको बुरा लग रहा था, ठीक है। उसको कुछ अंदर अंदर से इतना बुरा लग रहा था, ठीक है। शी वॉज फीलिंग सिक, शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टोमक। मतलब बॉटम ऑफ हर स्टोमक का मतलब है, मतलब ये एक एक्सप्रेशन है, एक प्रोवर्ब है, फीलिंग सिक इन द बॉटम ऑफ हर स्टोमक। एक एक्सप्रेशन है इंग्लिश में जिसका मतलब ये है कि हमारे अंदर जो एक बहुत बुरा लगता है, कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हम बोल भी नहीं पाते, सह भी नहीं सकते, अंदर अंदर से इतना ख़राब लगता है, इतना ख़राब लगता है कि अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। तो उस तरह का कुछ फीलिंग, ठीक है। उसको अंदर बहुत बुरा लग रहा था, ठीक है, बहुत बुरा लगना, ठीक है, बहुत गिल्टी लग रहा था, ठीक है, बहुत दोषी लग रहा था उसको खुद को, ठीक है। क्यों लग रहा था, ठीक है, क्यों लग रहा था? क्योंकि शायद वो इन्जॉय नहीं करती, शायद मैडी को अच्छा नहीं लगता था कि पैगी जाके वांडा को पूछे कि उसके पास कितने ड्रेसेस है, कितने ड्रेसेस उसके अलमारी में है। लेकिन उसको अगर बुरा लगता था, लेकिन उसने कुछ बोला तो नहीं था ना, राइट। मतलब उसको पैगी का वो बर्ताव अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसने पैगी को रोका भी नहीं था। उसने पैगी को उठ के नहीं बोला था कि तुम रुको, तुम मत करो ऐसा कुछ, ठीक है। तो वो तो उतना ही बुरा हुआ ना, मतलब ना करना और करने के अगेंस्ट आवाज़ ना उठाना सेम है। मतलब कुछ बुरा हो रहा है, वो देख के भी तुम चुप हो, उसके अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठा रहे हो, वो बुरा करने जैसा ही दोषी है, ठीक है। इवन उससे ज़्यादा दोषी है अकॉर्डिंग टू मेडी, ठीक है। तो मेडी वही सोच रही है कि शायद उसने एंजॉय नहीं किया था, शायद उसका अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसने उसके लिए आवाज़ भी नहीं उठाया। पैगी जो इतना उसका मजाक उड़ाती थी, उसको इतना हैरेस करती थी, उसके अगेंस्ट उसने कभी उसका आवाज़ भी नहीं उठाया, ठीक है। तो जिसके चलते वो पैगी की जितनी ही दोषी है, उसको उतना ही बुरा लग रहा था। उसको लग रहा था कि वो बुज़दिल है, वो कावर्ड है, शी वॉज अ कावर्ड, वो कावर्ड है। एटलीस्ट मतलब मेडी को तो समझ में आ रहा था ना कि वो लोग बुरा कर रहे हैं, पैगी को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो बुरा कर रही है। वो तो सोच रहे कि वो जो कर रही है वो मतलब सही कर रही थी, क्योंकि वांडा जो है वो उन लोगों से डिफरेंट थी, उसका नेम डिफरेंट था, वो ऑर्डिनरी नहीं थी। लेकिन मेडी को तो समझ में आ रहा था ना कि बुरा हो रहा है, लेकिन फिर भी मेडी ने कुछ नहीं किया। तो मेडी को अपने आप को और भी ज़्यादा उसको गिल्टी लग रहा था, ठीक है। फिर क्या हुआ, गुडनेस, और मेडी अब अपने आप को मतलब वांडा की जगह रख के सोच रही थी कि अगर मैं उसकी जगह होती तो क्या होता, तो और भी मुश्किल हो जाता उसके लिए, ठीक है। फिर क्या हुआ देखते हैं। Goodness, wasn't there anything she could do? If only she could tell Wanda she hadn't meant to hurt her feelings. She turned around and stole a glance at Peggy, but Peggy did not look up. She seemed to be studying hard. Well, whether Peggy felt badly or not, Maddie had to do something. तो वो सोच रही थी, सोच के वो यही सोच रही थी कि वो क्या कुछ भी नहीं कर सकती थी, कुछ तो कर सकती थी। एटलीस्ट वो जाके वांडा को बोल तो सकती थी कि हम तो सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं, तुम्हारा फीलिंग्स हर्ट करना हमारा कोई मोटिव नहीं था, हमारा कोई प्लान नहीं था, ठीक है। हम तुम्हारा फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहते थे, हम तो सिर्फ तुमसे मजाक करना था। वो इतना तो बोल सकती थी, लेकिन उसने वो भी तो नहीं बोला। कुछ तो वो कर सकती थी, अगर वो कुछ करती तो शायद ये सिचुएशन अवॉइड किया जा सकता था। वही सोच रही थी मैडी बार बार। तो उसने ये सोचते एक बार अपना सिर घुमा के पैगी की तरफ देखा, तो देखा पैगी बहुत ही मन लगा के पढ़ाई करने की कोशिश कर रही है, मतलब पढ़ाई कर रही है, और पैगी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। तो लग रहा था कि पैगी पढ़ाई कर रही है। तब मैडी ने सोचा कि पैगी को बुरा लगा या नहीं लगा, मुझे वो नहीं देखना, मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा, मुझे इस चीज़ को फिर से ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। मैडी ने ये दिमाग में सोच लिया। तो वो ठीक करने के लिए क्या करेगी? She had to find Wanda Petronsky. Maybe she had not yet moved away. Maybe Peggy would climb the heights with her and they would tell Wanda she had won the contest and that they thought she was smart and 100 dresses are beautiful. तो उसने सोचा कि वो वांडा पेट्रोन्स्की को ढूंढेगी, ठीक है, उसको ढूंढेगी, ढूंढ के उसको निकालेगी, ठीक है। शायद मतलब मेडी सोचे कि शायद वो अभी भी शहर से बाहर नहीं गई होगी, टाउन से बाहर नहीं गई होगी, तो वो जाके वांडा पेट्रोन्स्की को वो बॉगिन हाइट्स जो जगह है जहाँ पे वांडा रहती है वहाँ जाके उसको ढूंढेगी। और वो सोच रही थी कि शायद पैगी भी उसके साथ जाना चाहे, क्लाइंब द हाइट्स, मतलब वो टीला चढ़ के जाना चाहे वो बॉगिन हाइट्स में, ठीक है। और जाके वहाँ जाके दोनों वांडा को बोलेंगे कि वांडा कॉन्टेस्ट जीत गई है, ठीक है। वो जो तुम्हारा ड्राइंग का कंटेस्ट था, ड्राइंग का मुझे वो वांडा जीत गई है। और मतलब वो लोग वांडा को बोलेंगे कि वो लोग सोचते हैं कि वो कितनी ज़्यादा वंडरफुल है और उसके ड्रेसेस कितने सुंदर है।
मतलब अभी जब वो कॉन्टेस्ट जीत गई है, उसका टैलेंट सामने आ गया है, तब उसका कदर उनके आंखों में बढ़ गया, ठीक है। मतलब बढ़ गया या नहीं, मतलब बुरा लग रहा है कि उन लोगों ने ऐसा किया, लेकिन जब वो एक ऑर्डिनरी लड़की थी उनके लिए, तब उन लोगों ने कभी उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं। तो मैडी यही सोच रही थी, ठीक है। When the school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretend casualness, "Hey, let's go and see if that kid has left town or not." So Peggy had the same idea. Maddie glowed. Peggy was really all right. तो जब स्कूल दोपहर को ख़त्म हो गया, तो पैगी ने एकदम कैजुअल तरह से आके, मतलब वो दिखा रही थी वो कितनी केयरलेस है, ऐसे आके, मतलब ऐसे आके बोला मैडी को कि चलो देख के आते कि वो लड़की, दैट किड, मतलब वांडा, अभी तक शहर छोड़ के गई या नहीं। तो पैगी की तरफ मैडी ने एक बार देखा, देख के उसको थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ, पैगी भी वही सोच रही है जो मैडी सोच रहे थे। तो पैगी इतनी भी बुरी नहीं है, पैगी अभी तक थोड़ी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो वो जान के कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थोड़ी अच्छी है, उसको थोड़ा अच्छा लगा, मैडी को थोड़ा अच्छा लगा। The two girls hurried out of the buildings up the street towards Boggin Heights, the part of the town that wore such a forbidding air on this kind of November afternoon, drizzly, damp and dismal. तो दोनों लड़कियां, पैगी और मैडी, जल्दी जल्दी से स्कूल से निकली, ठीक है। निकल के एकदम बॉगिन हाइट्स की तरफ जल्दी करके बॉगिन हाइट्स की तरफ गई, ठीक है। और बॉगिन हाइट्स जो है वो टाउन के उस तरफ है, मतलब जो टाउन में वो लोग रहते हैं उस टाउन के उस तरफ है जहाँ पे ज़्यादा लोगों का जाना आना नहीं है, ठीक है। एकदम से जो पिछड़ा हुआ, एकदम से जो एकदम लास्ट कॉर्नर का जो जगह है, जहाँ पे शायद बहुत फैसिलिटीज़ भी अभी तक नहीं पहुँचा है, वैसा कुछ जगह पे वो लोग रहते हैं, ठीक है। और उस समय, मतलब नवंबर के उस आफ्टरनून में जहाँ पे बारिश हो रहा था, थोड़ा कीचड़ था ज़्यादा, उस समय तो वो जगह और भी डैम्प और भी डिसमल, मतलब और भी होपलेसनेस, और भी गंदा, और भी घटिया लगता था, ठीक है। उस जगह पे वो रहती थी, ठीक है। तो वो लोग उस जगह जाने का सोच रहे थे। Well, at least, said Peggy gruffly, I never did call her a foreigner or make fun of her name. I never thought she had the sense to know we are making fun of her anyway. I thought she was too dumb and look how she can draw. तो मैडी तो अपने आप को दोषी मान लिया, मैडी ने दिल में अपने आप को दोषी मान लिया कि वो कुछ कर सकती थी और वो उसके पास कुछ करने का था, लेकिन वो कर नहीं पाई। लेकिन पैगी जो थी, वो पैगी अपने आप को दोषी मानना नहीं चाहती थी, वो अपने आप को दिलासा देने पे लगी हुई थी। तो उसने बोला, एटलीस्ट, मतलब मैंने तो फिर भी उसको फॉरेनर कह के या उसके नाम को लेके हम लोगों ने मजाक नहीं उड़ाया। मुझे तो यही सोच के आश्चर्य हो रहा था कि उसको समझ में भी आ गया हम उसके साथ मजाक कर रहे थे। मैंने तो सोचा तो इतनी गधी है, इतनी डम्ब है कि उसको समझ में भी नहीं आएगा कि हम उसके साथ मजाक कर रहे थे, उसको ड्रेस लेके उसको हैरास कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे। वो समझ गए कि हम उसके साथ मजाक कर रहे थे। अब देखो वो, मतलब हम ही कितने बुद्धू निकले, वो कितना अच्छा ड्रॉ करती है, कितनी इंटेलिजेंट है वो, ठीक है। मतलब पैगी का बात अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो देखोगे पैगी इतना ज़्यादा मतलब लोगों के बारे में जज करती है, लोगों को जज करके उनके बारे में अपना एक नोशंस बना लेती है जो लोग से डिफरेंट होते हैं, कि उनके बीच उनके अंदर कुछ अच्छा हो बुरा हो वो सोचती नहीं है, वो बस अपनी तरह से इंटरप्रेट करने लगते हैं। वो इतना इंटरप्रेट करने लगते कि उसने सोचा कि वांडा तो एकदम बुर्बक है, वो तो कुछ समझेगी नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है, वही सोच के वो लोग करते जा रहे थे। लेकिन वही करते करते एक समय वांडा को बहुत बुरा लग गया, इतना बुरा लग गया कि वो उसके माता पिता ने उसको स्कूल छुड़वा दिया और वो लोग भी उस शहर से चले गए, ठीक है। मैडी कुड say nothing. All she hoped was that they could find Wanda. She wanted to tell her that they were sorry that they had picked on her and how wonderful the whole school thought she was, and please do not move away and everybody would be nice. She and Peggy would find anybody who was not nice. तो मैडी ने जब पैगी ने ये बात बोला कि वो उसको गधी समझती थी, डम समझती थी, कि वो समझेगी नहीं कि उन लोगों के साथ मजाक करिए ये सब, तब मैडी ने कोई भी आंसर नहीं दिया, क्योंकि मैडी के दिमाग में बस वही चल रहा था कि किसी तरह वो वांडा को खोजे। तो वो सिर्फ यही आशा कर रही थी, यही उपकर कि जल्दी से जल्द वांडा मिल जाए, ठीक है, ताकि वो वांडा को बोल पाए कि वो लोग बहुत सॉरी है कि उन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसके साथ टीजिंग किया, उसको हैरास किया, ठीक है। और बोलेंगे कि अब, मतलब उसको बताएंगे कि स्कूल अब उसके बारे में कितना अच्छा सोचता है, कितना वंडरफुल सोचता है, ठीक है। उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो वहाँ से ना जाए, और ये प्रॉमिस करेंगे सब उसके साथ नाइस रहेंगे, और अगर कोई भी उसके साथ नाइस बिहेवियर नहीं करता है तो वो और पैगी उससे लड़ पड़ेंगे। मतलब यहाँ तक मैडी सोच रही थी, ठीक है।
तो यही सोचते सोचते वो लोग जा रहे थे, ठीक है। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल्स बिफोर डार्क। और दोनों बहुत जल्दी जल्दी जा रहे थे क्योंकि वो लोग चाहते थे कि वो लोग शाम होने से पहले वहाँ पहुँच जाए, वहाँ जाके वांडा को समझा बुझा के रोक ले और फिर वहाँ से चले आए, ठीक है। तो यही वो लोग सोच रहे थे, यही सोच के वो लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो आज इतना तक ही रहने दो, कल नेक्स्ट पार्ट और संडे को और नेक्स्ट पार्ट करके हम लोग ख़त्म कर देंगे ये चैप्टर, ठीक है। और इसमें अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी हो, तो प्लीज़ आस्क मी इन द ग्रुप, प्लीज़।